नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। So the next chapter is differential equations. ओके बेटा, कुछ डाउट्स नहीं है ना पीछे वाला चैप्टर में? सर एक है सर, पर लास्ट में भेज देंगे। ओके, लास्ट में पूछ लीजिए आज, ठीक है। सो व्हाट आर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये आपका इंटीग्रल कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है। ओके, सो फर्स्ट देखिए, you have to understand the concept of family of curves. What is a family of curves? For example, मान लीजिए y square is equal to 4x is a parabola. Yes or no? Y square is equal to 4x is a parabola. This is a specific parabola. इसका एक ग्राफ, स्पेसिफिक ग्राफ होता है ना y square is equal to 4x का। ऐसा ना? Yes. अब compare this with y square is equal to 4ax. What is y square is equal to 4ax? ये सिर्फ y square is equal to 4x का एक स्पेसिफिक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आप? नहीं ना, क्योंकि the graph of y square is equal to 4x depends on the value of a. Yes sir. So if you want to describe y square is equal to 4x, you can describe this as a standard right-handed parabola. Yes or no? So does y square is equal to 4x represent a particular curve or a family of curves? Y square is equal to 4x एक सिंगल कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं या एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करते हैं? It represents a family of curves, right? Yes or no? So as you substitute different values of a, you're going to get different parabolas. Yes or no? Yes sir. So in a single equation, if you represent more than one curves, then such equation is called the equation of a family of curves. Okay, समझ में आ रहा है? Usually family of curves को represent करने के लिए we use something called an arbitrary constant. In this y square is equal to 4x, this a is called an arbitrary constant. देखिए a जो है वो वेरिएबल नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कर्व के लिए एक पर्टिकुलर a होता है ना, ऐसा ना? कि a जो है x एंड y जैसा नहीं है, x एंड y आर वेरिएबल्स, x चेंज हो रहे y चेंज हो रहे, एक पर्टिकुलर कर्व में x भी चेंज होगा y भी चेंज होगा, बट फॉर ए पर्टिकुलर कर्व a डज नॉट चेंज। है सर? Yes. सो अगर a चेंज हुआ तो आप उस फैमिली में एक कर्व से एक और दूसरा कर्व तक जा सकते हैं। सर, इफ यू हैव टू कर्व्स इन दिस फैमिली, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम वन कर्व टू द अदर कर्व, ये a को चेंज करने से हो जाएगा। सर, सो दिस a इज कॉल्ड एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझ रहे? ओके, a is called an arbitrary constant. So usually एक family of curves को represent करने के लिए we use an arbitrary constant. ये concepts आप already थोड़ा सा देख चुके हैं। For example, L1 plus lambda L2 is equal to 0. कहीं देखा हुआ लग रहा है ये? The family of straight lines. Straight lines में this is a family of straight lines passing through the point of intersection of L1 equal to 0 and L2 equal to 0. Yes or no? This lambda is what? This is an arbitrary constant. समझ रहे? So L1 plus lambda L2 is equal to 0 is an arbitrary constant. Clear? So this arbitrary constant can be thought of as a degree of freedom. This arbitrary constant can be thought of as a degree of freedom
अगर आप फिजिक्स के तरीके से सोचा तो you can have 1 degree of freedom or 2 degrees of freedom or 3 degrees of freedom. For example, मान लीजिए y is equal to mx है, अगर m एक arbitrary constant है तो सर हाँ बोलिए बेटा सर फंस गया लग रहा है, क्या हुआ, फंस गया। क्या वीडियो नहीं चल रहे? हाँ यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है बेटा, कुछ बार बाहर जाके फिर ज्वाइन कर लीजिए। हाँ सर। हेलो, अभी आ रहे हैं अभी भी फंसे हैं? नहीं सर। ठीक है अभी। So y is equal to mx where m is an arbitrary constant. So what does this represent? This represents the family of straight lines passing through origin, yes or no? हाँ सर। So इस family में कितना degrees of freedom है? There is 1 degree of freedom. This lines जो है that can rotate about the point origin, yes or no? डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब जितना पॉइंट से रोटेट कर सकते। हाँ, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू mx प्लस c है। मान लीजिए m भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, c भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू आर्बिट्री कांस्टेंट्स, दैट मींस द लाइन कैन रोटेट एज वेल एज ट्रांसलेट, इज और नो? हाँ सो देयर आर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ऐसा नो? मतलब बेसिकली जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है फिजिक्स के तरीके से देखा तो देयर आर नथिंग बट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्लियर? So you can also have many degrees of freedom. Yes or no? यस। So now देखिए, so one of the way to describe a family of curves is by using arbitrary constants on there. So now the concept of differential equations is that differential equations is another way to represent the family of curves. जो भी family of curves अभी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसी फैमिली ऑफ कर्व्स को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल लेट अस सी, ये नोट किया? हाँ फॉर एग्जांपल टेक द कर्व y इज इक्वल टू mx। मान लीजिए m इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, दिस इज a family of curves, yes or no? So this can also be represented as, देखिए, dy by dx is equal to m, yes or no? डिफरेंशिएट किया था एक बार। हाँ। एंड हमारा लॉजिक क्या है? इफ यू हैव टू इक्वेशंस यू कैन एलिमिनेट वन वेरिएबल और समथिंग। एक अननोन को एलिमिनेट कर सकते हैं, सो नो? लोकस वाला क्वेश्चंस में हम देखे हैं, हाँ आपके पास n इक्वेशंस है तो n-1 वेरिएबल्स को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो नाउ dy by dx is equal to m। इस फर्स्ट इक्वेशन में m के प्लेस में मैं dy by dx पुट करता हूं। सो y is equal to dy by dx into x, ऐसा नो? सो dy by dx is equal to y by x। So this is the differential equation corresponding to this family of curves. Basically y equal to mx and dy by dx is equal to y by x, both are same. Y equal to mx also represents family of curves. dy by dx is equal to y by x also represents family of curves. Clear? यस। So differential equation is nothing but another way of representing family of curves. Okay? आप बोल सकते हैं y equal to mx तो मुझे सीधे से दिख रहा है ना, दिस इज द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब मान लीजिए मैं dy by dx is equal to y by x देता हूं,
How can you convert back into y is equal to mx? Simply by solving this differential equation. For example, dy by y is equal to dx by x. Sorry, Yes. y equal to mx को यूज करके dy by dx is equal to y by x निकालना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. समझ रहे? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिएगा क्या करते हैं? सिंपली वी एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट. क्लियर? Yes. अब dy by dx इज इक्वल टू y by x को यहां से आप y इक्वल टू mx तक जाने को हम बोलते हैं सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन. So when you are asked to solve differential equation, you just have to go from differential equation to the general way of representing the family of curves. So this implies दोनों तरफ integrate करेंगे. dy by y is equal to integration of dx by x. This implies ln y is equal to ln x plus some arbitrary constant c. Yes or no? Yes. So आपका differential equation solve हो गया. So what is the solution of dy by dx is equal to y by x? ln y is equal to ln x plus c. Yes or no? But आप देख सकते हैं this and this look different. Yes or no? हाँ सर. But effectively these two are same. क्योंकि आप देख सकते हैं you can convert this back into this form. For example, ln y minus ln x is equal to c. Yes or no? So ln of y by x is equal to c. So y by x is equal to e power c. Yes or no? अगर c आर्बिट्री कांस्टेंट है तो e power c भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है ना? If c is an arbitrary constant, e power c is also another arbitrary constant. Yes or no? So अगर e power c को आप m मान लिया तो y equal to mx आ गया. हाँ सर. समझ रहे? इसका ये मतलब है if you want to represent the family of straight lines passing through origin, y equal to mx is not the only way. समझ में आ रहे? Yes or no? y equal to mx is not the only way. Yes. So मान लीजिए y equal to mx है. ln y is equal to ln m plus ln x. Yes or no? Yes sir. So ln m को एक दूसरा कांस्टेंट मान लिया था क्योंकि m कांस्टेंट है तो ln m भी कांस्टेंट. Yes or no? So ln y is equal to ln x plus some constant k. This is also the same equation. ये दोनों equations अलग नहीं है. Yes or no? Yes sir. So a family of curves can be represented in a different number of ways. Clear है? So one is by using arbitrary constants, the other is by using differential equation. Clear hai? So as you increase the degrees of freedom का मतलब है arbitrary constants. As you increase the number of arbitrary constants, the formation of differential equation becomes complicated. Yes or no? So अगर ये नोट किया तो इस बार हम दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स का एक फैमिली ऑफ कर्व्स लेके लेट अस फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो बहुत इजी वाला लेता हूं स्टार्टिंग में. y इक्वल टू mx प्लस c. व्हाट इज दिस? दिस इज द फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन xy plane. or no? Yes sir. So there are two arbitrary constants. If you want to create a differential equation, you have to eliminate these two arbitrary constants. Yes or no? ये दोनों को eliminate करना पड़ेगा. So दो arbitrary constants को eliminate करना है तो आपको कितना equations चाहिए? Two equations चाहिए ना? Yes or no? हाँ सर. So दो equations कैसे find करेंगे? मान लीजिए dy by dx is equal to m. Yes or no? Yes sir. अब you have two equations से m and c दोनों eliminate नहीं कर सकते हैं. So एक और equation चाहिए. So एक और बार differentiate करेंगे. d square y by dx square is equal to 0. Okay? So जितना arbitrary constants है उतना बार आपको differentiate करना पड़ेगा क्योंकि equations तो create करना पड़ेगा ना आपको.
to eliminate the arbitrary constants. अगर आपके पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो एक्स्ट्रा इक्वेशंस चाहिए आपको जो गिवन इक्वेशन के अलावा, ऐसा ना? हाँ सर। सो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो आप लकीली देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. इसमें तो आर्बिट्री कांस्टेंट है ही नहीं, इफेक्टिवली आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया. सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. So what is the differential equation corresponding to the family of straight lines in xy plane? Simply d square y by dx square is equal to 0. Okay? आप फिजिक्स में अगर फिजिक्स के तरीके से सोचा तो आप सर्कुलर मोशन में ये डिराइव किया होगा कि d square y by dx square represents the curvature. Yes or no? हाँ सर। So straight line का मतलब क्या है? Curvature is equal to 0. 0. सर no? एक ऐसा कर्व है जिसका कर्वेचर 0 है. That will be the description of a straight line. Clear? तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम d2y by dx2 is equals to 0 को बोले. हाँ यही देखिए, आपको effectively you just have to create a differential equation where you don't have any arbitrary constants. So directly d square by dx square equal to 0. Both the arbitrary constants got eliminated. Yes or no? Yes. So that is the differential equation. Clear? समझ में आ रहे? आगे जा सकता हूं? हाँ सर. So if I ask you what is the definition of a differential equation? So differential equation का definition क्या है? A differential equation is an equation in terms of the independent variable, dependent variable, and the differentials of the independent variable with respect to dependent variables. Yes or no? A differential equation is just an equation which is made out of the independent variable, dependent variable, and the derivatives of dependent variable with respect to independent variable, so on. Yes or no? Yes. So that's the basic definition of differential equation. ठीक है, आप एग्जांपल्स में अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशंस लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल dy by dx plus 5y is equal to e power x. डिफरेंशियल इक्वेशन है. यस. सो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिएट करना आप बहुत तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy by dx plus 3y is equal to sin x. Is it a differential equation? Yes. Yes. So all these are differential equations. So dy by dx is equal to x cube minus y cube by xy square plus yx square. Again, this is also a differential equation. x's होना चाहिए, y's होना चाहिए, and differentials होना चाहिए. समझ रहे? But it's not that always x and y, कोई भी variables हो सकते हैं. Yes or no? So differential equations लिख सकते हैं. So if you want to understand the family of curves that these differential equations represent, क्या करना पड़ेगा आपको? इस differential equations को solve करना पड़ेगा सर. Because अभी तक जो भी हम curves analyze किए हैं, all the curves have Cartesian equations, है सर? Yes sir. आपके पास अगर Cartesian equation है तो आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं सर. So when you have a differential equation, it is very difficult to analyze what this curve means. Yes or no? हाँ सर. So if you want to understand what this curve means, आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा. समझ में? बट सॉल्व करना हर बार इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, the process involves integration, right? डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व किया?
इंटीग्रेशन से। है ना, लास्ट पेज में आप देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करके सॉल्व किया सर, क्योंकि व्हेन यू क्रिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन यू एलिमिनेटेड द आर्बिट्री कांस्टेंट्स। आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं हम, इसको वापस जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है वो वापस आ जाएगा। क्लियर है? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट sometimes to solve the differential equation. Clear है? So differential equations is one of the most important topic when you go to engineering. ठीक है, जो भी इंजीनियरिंग का काम होता है सारा डिफरेंशियल इक्वेशंस का बेस्ड में ही होता है। When you go to engineering, मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग का डिजाइन इन्वॉल्व सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। मान लीजिए एक ट्रक का डिजाइन है या कार का डिजाइन है, कोई भी डिजाइन है, कोई भी मैन्युफैक्चर होता है, कोई भी एक स्क्रू का भी डिजाइन करना है आपको, सिंपली यू हैव टू द डिजाइन इन्वॉल्व सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। समझ में आ रहे? कोई भी मैकेनिकल डिजाइन इन्वॉल्व सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू हायर स्टडीज। समझ में आ रहे? अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट वंस यू गो टू इंजीनियरिंग एक पूरा सेमेस्टर होगा सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने में। समझ में आ रहे? एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस आर नॉट ऑलवेज इजी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशंस आ सकते हैं आपको। एंड अभी हम क्या करते हैं, वी डील विथ ओनली दोज डिफरेंशियल इक्वेशंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड एनालिटिकली। अच्छा सा जो एग्जैक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ वो डिफरेंशियल इक्वेशंस हम डील करेंगे। बट वंस यू गो टू रियल वर्ल्ड, so you won't have differential equations which can be solved directly. So आपको extra methods आएगा which are called numerical methods. ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो न्यूमेरिकल मेथड्स का मतलब देखिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को मान लीजिए सॉल्व करना है, you know that differential equations are family of curves, yes or no? So solving differential equations using numerical methods is like drawing what are called magnetic lines of force. आप कभी ड्रॉ किया है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? आपके पास एक्सपेरिमेंट होता है ना, कॉम्पास यूज करके ऐसा मूव करते करते जाते हैं ना, yes or no? Yes. So magnetic lines of force are also what? Those are family of curves, yes or no? Yes. अब कैसे ड्रॉ करते हैं? अगर एनालिटिकली ड्रॉ करना है, मतलब एनालिटिकली का मतलब आप डिराइव करते हैं। इफ यू वांट टू एक्चुअली ड्रॉ इट, ठीक है, आप न्यूमेरिकल मेथड्स यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए dy by dx इज इक्वल टू y by x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को प्लॉट करना है आपको। क्या करते हैं? यूज ए कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल ऑरिजिन पे एक हॉलो डॉट होगा, ऐसा ना, क्योंकि dy by dx इज इक्वल टू y by x, 0 by 0 इज नॉट डिफाइंड, ऐसा ना। तो मान लीजिए आप थोड़ा सा आगे जाइए, थोड़ा सा आगे जाइए, ओके, थोड़ा सा आगे जाइए। यह x कितना है और y कितना है? 0 है ना, ऐसा ना। एट दिस पॉइंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 0. 0। इसका मतलब dy by dx कितना है? 0। इसका मतलब कर्व जो है कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं? स्लोप 0 वाला डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं सर। इस डायरेक्शन में हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक और पॉइंट आएगा, यहां डायरेक्शन निकालते हैं। dy by dx इज नथिंग बट डायरेक्शन है सर। सो यहां भी dy by dx 0 है ना, क्योंकि वी आर मूविंग ऑन x एक्सिस। सो ऐसा करके आगे जा रहे हैं, सो नो। सो यू गेट ए कर्व विच इज अलोंग x एक्सिस। एक लाइन आ रहे हैं, दिख रहा है आपको? हाँ सर. मान लीजिए आप यहां से यू स्टार्टेड विद दिस पॉइंट, यहां y का वैल्यू कुछ होगा, x का वैल्यू कुछ होगा, ऐसा ना। सो इस Yes, पॉइंट पे आप कौन सा डायरेक्शन में जाना है? dy by dx इक्वल टू y by x का डायरेक्शन में जाना है, ऐसा ना। सो ऑब्वियसली dy by dx इक्वल टू y by x का मतलब यही डायरेक्शन है ना, ऐसा ना।
यस सर। आप थोड़ा सा आगे जाइएगा, फिर वही डायरेक्शन आएगा, फिर आगे जाएगा, y by x का वैल्यू चेंज नहीं होता है ना उस लाइन पे, you're always going to get the same y by x. so एक कर्व इस डायरेक्शन में आया, वैसे यहां से स्टार्ट किया तो एक कर्व ऐसा आएगा, यहां से स्टार्ट किया तो एक कर्व ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, समझ में आ रहा है? क्लियर? so whatever Yes. you're going to get a family of curves like this. आप जितना कंप्यूटर को यूज करके जितना क्लोजली आप ड्रॉ करना है उतना ज्यादा लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा ना? So this is how Yes, you sir. solve differential equation using numerical methods. But dy by dx equal to y by x is very easy. आप directly भी solve कर सकते हैं, y is equal to mx. ऐसा ना? That's the line. Clear? That's the family of curves. So first आप differential equation का मतलब तो समझ में आ गया. What is a differential equation? ऐसा ना? आगे जा सकता हूँ? हाँ सर। So once we understand what differential equations is, there are two terms which you need to understand. First is order of differential equation, degree of differential equation. ठीक है? ऑर्डर का मतलब है एक डिफरेंशियल इक्वेशन में व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल दैट इज प्रेजेंट. हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल is called the order of differential equation. इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब dy by dx, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब d square y by dx square, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब d cube y by dx cube. सो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लीजिए, उसमें जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल जो भी है दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, क्लियर? Yes, sir. Next, degree of differential equation is nothing but the highest degree of the highest order differential. The highest degree of the highest order differential after the differential equation is made free of radicals and fractions. Okay, इसका मतलब देखेंगे हम. So let us take some examples. Okay, for example, d square y by dx square plus 5 dy by dx plus 3y is equal to 0. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसका ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है? देखिए, ऑर्डर का मतलब सिंपली द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल दैट इज प्रेजेंट. सो इसमें व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल? 2 है, ऐसा ना? d square y by dx square, the order is 2. What is the degree of this differential equation? जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है? बेसिकली यहां तो एक ही पावर है ना, d square by dx square का पावर 1 ही है ना, ऐसा ना? हाँ सर। d square by dx square का पावर तो 1 है, so that is the highest power. For example, d square y by dx square whole cube plus 2d square y by dx square plus 3y is equal to 0. मान लीजिए ये है. What is the order now? Order is 2 again, क्योंकि highest order differential is even now 2. Yes or no? Yes sir. What is the degree here? 3. Degree इस बार 3 होगा, क्योंकि देखिए you have 2d square y by dx square terms. Yes or no? ये दोनों में what is the highest power? 3. Yes or no? मान लीजिए इसी इक्वेशन में प्लस 5 टाइम्स dy by dx का पावर 5 भी है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव dy by dx पावर 5 ऑल्सो. नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन?
ऑर्डर तो अभी भी 2 है सर नो. Yes, sir. What is the degree of this differential equation? 3. हाँ अभी भी 3 है क्योंकि dy by dx का पावर तो ज्यादा है d square by dx square से. बट डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन है हाईएस्ट डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल. ओके सो dy by dx का जितना भी पावर है वो देखने का जरूरत नहीं है. यू हैव टू सी द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल. क्लियर है? ओके समझ में आ रहा है कि हाँ. आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज मेड फ्री ऑफ रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस का मतलब क्या है देखिए. फॉर एग्जांपल यू हैव y is equal to x dy by dx plus root of 1 plus dy by dx का whole square. For example, this is the differential equation. Okay. यहाँ भी whole square लगा लीजिए just for convenience. Now, what is the degree and order of this differential equation? देखिए order निकालना बहुत easy है. Order तो बहुत straight forward है. What is order? 1. Yes or no? 1. Now, what is the degree of this differential equation? So, just by seeing this equation, you can see that the highest degree of dy by dx is 2. Yes or no? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2. But इस differential equation का degree 2 नहीं है. क्योंकि डिग्री निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशियल्स कैन नॉट बी अंडर रेडिकल्स और एज फ्रैक्शंस. समझ आ रहे? सो डिग्री निकालने से पहले आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके यू हैव टू एलिमिनेट दिस रेडिकल्स. रेडिकल्स का मतलब फ्रैक्शनल पावर्स है सर नो. क्लियर? Yes, sir. Yes. सो क्या होगा? इसको पहले एलिमिनेट करने के लिए कोशिश करेंगे. y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर. ऐसा नो? Which implies if you do squaring on both sides, y minus x dy by dx का whole square is equal to 1 plus dy by dx का whole square. ऐसा नो? Now Yes, the sir. differential equation is free of radicals. अब आप देखिए dy by dx का हाईएस्ट पावर क्या है. क्योंकि इसको एक्सपेंड तो करना पड़ेगा. देखिए होल स्क्वायर है ना, जब आप होल स्क्वायर को एक्सपेंड करिएगा वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर का होल स्क्वायर भी आएगा ना. सो द हाईएस्ट डिग्री इज गोइंग टू बी 4. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. सो यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दीज 2 स्टेप्स. जस्ट आप स्क्वायर रूट को नेग्लेक्ट करके 2 नहीं लिख सकते डिग्री. सो ऑर्डर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट डिग्री इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. डिग्री में कभी कभी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकते हैं. क्लियर है? ओके Yes, sir. और कुछ एग्जांपल्स करेंगे अगर ये नोट किया तो. ओके आगे जा सकता हूं? नोट किया? हाँ सर. For example, you have these 2 differential equations. से दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस का डिग्री एंड ऑर्डर एंड डिग्री कितना है.
देखिए ऑर्डर तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सो व्हाट इज द ऑर्डर? फर्स्ट का ऑर्डर 2 है सर नो, सेकंड का ऑर्डर 1. इसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना? नहीं सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन? आप देख सकते हैं यहां फ्रैक्शनल पावर है सर नो. सो इस फ्रैक्शनल पावर को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर तो करना पड़ेगा शायद, है सर नो? Yes. होल यस स्क्वायर तो करना पड़ेगा. सो होल स्क्वायर करने के बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है उसका हाईएस्ट पावर कितना आएगा? 2 आएगा ना, ऐसा नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस एंड Yes. व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? ये तो देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है शायद. सो यहां डिग्री कितना होगा? सो यहां भी 2 ही आएगा क्योंकि इसको आप लेफ्ट साइड लेके स्क्वायरिंग तो करना पड़ेगा. सो वंस यू स्क्वायर इट ऑन बोथ साइड्स dy by dx का हाईएस्ट पावर 2 ही आएगा सर. Yes. सो रेडिकल्स नहीं होना चाहिए, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? यू हैव टू मेक द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री ऑफ रेडिकल्स. ओके, नाउ व्हाट इज द Yes, sir. मीनिंग of making it free of fractions? For example, dy by dx is equal to x plus dx by dy. ये भी differential equation है. What is the degree of this? And what is the order of this? Order तो 1 है, ये दिख रहा है ना आपको? Order में ज्यादा confusion नहीं होगा कभी. अब डिग्री कितना है? If you take degree as 1, that is a mistake. क्योंकि एक dy by dx एक dx by dy है ना? So you know that dx by dy is nothing but 1 by dy by dx, है सर? सही कि नहीं? यस तो इसका मतलब dy by dx डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शन में है. So आपको क्या करना पड़ेगा? I'll multiply the whole equation with dy by dx again. So dy by dx का whole square is equal to x dy by dx plus 1 हो जाएगा, ऐसा ना? So now the differential equation is free of radicals. Hence the degree is how much? Degree is 2. Clear है? Yes. ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिग्री फाइंड करने समय आपको याद रखना है. अभी तक अब क्या क्या याद है? रेडिकल्स नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शंस नहीं होना चाहिए सर. Yes, sir. यस Now one more important thing that you need to remember is differentials cannot be within functions when calculating degree. Differentials cannot be under functions when calculating degrees. इसका मतलब है, for example, dy by dx or d square y by dx square is equal to sine of dy by dx, for example. ऐसा भी हो सकता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर, डिग्री. So what is the order of this differential equation? 2. ऑर्डर तो बहुत सिंपल है, ऑर्डर में कुछ कंफ्यूजन नहीं है. What is the degree of this differential equation? So डिग्री निकालने से पहले डिफरेंशियल्स को आप फंक्शंस के अंदर से निकालना पड़ेगा. समझ में आ रहे? So ये dy by dx साइन के अंदर है ना, ऐसा ना?
So at this stage you cannot calculate the degree. So dy by dx को आप साइन से बाहर करना पड़ेगा. But dy by dx को कैसे साइन से बाहर करिएगा? साइन इनवर्स अप्लाई करना है सर नो? यस सर. बट आप देखिए साइन इनवर्स अप्लाई किया तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो साइन इनवर्स के अंदर चला जाएगा ना. हाँ सर. सो ऐसा भी नहीं हो सकता है. सो एट द सेम टाइम कैन यू टेक आउट dy by dx as well as d square by dx square from the function? नो, ऐसा नो. दोनों तो बाहर नहीं आएगा ना. अगर राइट साइड से फंक्शन निकाल दिया तो वो फंक्शन लेफ्ट साइड आ जाएगा. लेफ्ट साइड से निकाल दिया तो राइट साइड चला जाएगा. ऐसा नो. यस सर. So we say the degree is not defined. अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे कभी भी, then we say that degree is not defined. वैसा फंक्शंस को, वैसा डिफरेंशियल इक्वेशंस का डिग्री नहीं होगा. क्लियर है? Yes. Sin of dy by dx is equal to x plus y. इसका कितना है? What is the order? Order तो 1 है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना. What is the degree? What is the degree of this differential equation? 1. Degree is 1. इस बार not defined नहीं है. क्यों? देखिए, क्योंकि dy by dx is inside sin. Sin को आप लेफ्ट साइड भेज दिया तो राइट साइड भेज दिया तो dy by dx is equal to sin inverse of x plus y, right? Now x and y are not differentials. ध्यान दे दीजिए. हमारा पॉइंट क्या है? डिफरेंशियल्स कैन नॉट बी विद इन फंक्शंस. एक्स एंड वाई फंक्शंस के अंदर हो सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes sir. सो बहुत बार आपका डिग्री जो है वो अनडिफाइंड भी हो सकता है. ओके, सो यू हैव टू ट्राई टू ब्रिंग ऑल द डिफरेंशियल्स फ्रॉम आउटसाइड फंक्शंस, outside radicals, outside fractions, so on. Okay, so for example, d square y by dx square is equal to d square x by dy square. What is the order and degree of this differential equation if I ask you something like this? ऑर्डर तो कितना होगा? ऑर्डर तो 2 है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है. अब डिग्री क्या है? अब डिग्री के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको. मेहनत क्या है? सो यहां तो एक डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, एक डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर है ना. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या है? अगर डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स बाई डी वाई है, आप डायरेक्टली आप 1 बाई करके हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, एलसीएम लेके. सर नो, दिस इज इजी सिंप्लीफिकेशन. बट आप सेकंड डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, उसका कैसे एनालिसिस करिएगा? हाउ विल यू एनालाइज दिस? सो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कन्वर्ट करना पड़ेगा. सर नो, करना पड़ेगा ना आपको. हाँ सर. सो वो कैसे करिएगा? दिस इज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स. अब आपका क्वेश्चन है डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर को आप डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? नहीं. सो हम ट्राई करेंगे. सो डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इज नथिंग बट डी बाई डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई. सर, Yes sir. that is equal to d by dy of 1 by dy by dx. Yes sir. That is equal to d by dx of 1 by dy by dx into dx by dy. लिख सकते हैं ऐसा? dx dx कैंसिल हो जाएगा. Yes sir. Yes sir. So that is equal to 1 by something d by dx of 1 by something, 1 by something का minus 1 by something का whole square. ऐसा ना, चेन रूल. हाँ सर. 1 by something का डिफरेंशिएशन क्या है? minus 1 by something whole square into
डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा ना, Yes. एंड इंटू डी एक्स बाई डी वाई को बाई डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूं। Yes, तो sir. इफेक्टिवली क्या है, माइनस ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब आ रहे हैं, ऐसा ना? ये क्वेश्चन है, अपने में एक क्वेश्चन है ये, कन्वर्ट डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर in terms of dy by dx and d square y by dx square। ये अपने में एक क्वेश्चन हो सकता है ना ये, ऐसा ना? Yes. So now d square y by dx square is equal to d square x by dy square। इसको सिंप्लीफाई करना है तो d square y by dx square is equal to minus of d square y by dx square divided by dy by dx का होल क्यूब, ऐसा ना? Yes, sir. So d square y by Yes. dx square ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ऐसा ना? So dy by dx whole cube is equal to -1, ऐसा ना? Yes. Sir. So dy by dx is equal to -1, whole cube -1 का मतलब है dy by dx -1 होना चाहिए ना, ऐसा ना? तो ऐसे करने से हम लोगों का ऑर्डर भी चेंज हो गया। देखिए ये एक स्पेशल केस है, यूजुअल ऐसा होता नहीं है। देखिए ये स्पेशल केस में आपको पूछ सकते हैं, एक्चुअली हम ऑन द फेस वैल्यू द डिग्री द ऑर्डर सीम्स टू बी 2, बट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 नहीं है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 1। इस डिफरेंशियल का ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऐसा आपको कुछ एक्सेप्शंस ट्विस्ट करके क्वेश्चंस दे सकते हैं, ठीक है? उसमें आपको ये मतलब टेस्ट कर रहे हैं वेदर यू कैन डू द प्रोसेस, क्योंकि मान लीजिए जेईई में ये वाला क्वेश्चन देते हैं, इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा ना डायरेक्टली, कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो रहेगा, हाँ, sir. तो वो ट्विस्ट ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो यूजुअली हम जनरल केसेस का बात कर रहे हैं ना, डायरेक्टली देख के ऑर्डर बोल सकते हैं हर बार, और वो 99% हो सकते हैं, बट कभी कभी ट्विस्ट भी हो सकते हैं सर। सो आपको पहला dy by Yes. dx होल क्यूब इज इक्वल टू -1 कर लिया आपने, यहां देख के डिग्री 3 लिख लिया आपने, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि dy by dx होल क्यूब अगर -1 है, इसका मतलब dy by dx इज इक्वल टू -1 है सर ना? सो पावर 3 है वो आर्टिफिशियली रखा गया है, अगर dy by dx होल क्यूब -1 है तो दैट सिंपली मींस दैट dy by dx इज इक्वल टू -1 है सर ना? सो इफेक्टिवली डिग्री भी 1 है, ऑर्डर भी 1 है, क्लियर है? Yes, sir. yes sir। Yes. Sir. सो मान लीजिए अगर यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर प्लस वाई ऐसा कुछ है एक्स्ट्रा, मान लीजिए प्लस वाई ऐसा कुछ है, देन योर आंसर्स विल बी डिफरेंट। अगर बगल में प्लस वाई है तो आंसर चेंज हो जाएगा, इस बार इतना अच्छा सा सिंप्लीफाई नहीं होगा, वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैंसिल भी नहीं होगा, क्लियर है? Yes, sir. देन द ऑर्डर विल बिकम 2 एंड डिग्री आप कैलकुलेट करके मोस्टली शायद मुझे लग रहा है कि 1 ही आएगा। ओके, सो ऑर्डर एंड डिग्री समझ में आ रहे? हाँ, sir. So order is usually Yes. always defined. Order is always defined, but degree जो है वो अगर आप convert कर सकते हैं then it is defined. Convert नहीं कर पा रहे तो it's not defined. Okay? देखिए ऐसा हो सकता है आप convert नहीं कर पा रहे, मैं convert कर पा रहा हूँ, that's a different matter. वो skill भी होना चाहिए, आप अलग अलग तरीके से try भी करना पड़ेगा, ऐसा ना? हाँ, sir. So वो भी मैटर करते हैं, ठीक है? हाउ यू आर गोइंग टू ट्राई टू गेट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके,
सो यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, formation of differential equation. क्या है? Formation of differential equation. देखिए यहां हम देखे हैं differential equation is nothing but a way of representing family of curves, है सर? And family of curves can also be expressed in terms of arbitrary constants. है ये क्या नहीं? So family of curves को express करने का दो तरीका है. एक है using arbitrary constants, the second is by using differential equations. है सर? Yes, sir. And differential equations को solve किया तो आपको वापस solutions आ जाएगा. है सर? So for example देखिए, y is equal to mx plus c. There are two arbitrary constants. है सर? There are two arbitrary constants, m and c. So if you have two arbitrary constants, to eliminate these two arbitrary constants, you should differentiate it how many times? You're going to differentiate it 2 times, yes or no? So dy by dx is equal to m, d square y by dx square is equal to 0, yes or no? यहाँ एक observe कर लीजिए, observe one thing, the number of arbitrary constants is same as the number of differentiations, yes or no? एंड जितना बार डिफरेंशिएट करिएगा उतना ऑर्डर बढ़ेगा, yes or no? 2 बार डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 2 हो जाएगा. सो कैन आई से दिस, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स is equal to order of differential equation, yes or no? Yes, sir. This is one of the thing which you need to remember. कभी कभी क्या होता है, एक बड़ा सा इक्वेशन मिलेगा जिसमें बहुत सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, उसको आप पूछेगा अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया तो कितना ऑर्डर का आएगा, तब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. क्लियर है? ओके और नॉट? Yes, sir. एक एग्जांपल करेंगे. y is equal to c1 plus c2 into e power c3x plus 4 c4 plus c5 by 3 into e power c4 into x. मान लीजिए ये c6 into x. Okay, you have this family of curves. ये फैमिली ऑफ कर्व्स है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, दिस इज अ फैमिली ऑफ कर्व्स. मैं बोलता हूँ c1 c2 c3 c4 c5 c6 जो है वो सारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है. ओके, क्लियर? यहाँ प्लस c7 भी लिख लीजिए. ओके, फॉर एग्जांपल यू हैव समथिंग लाइक दिस. So if you create a differential equation corresponding to this family of curves, what will be the order of the differential equation? Order of differential equation is equal to how much? That's the question. So answer क्या है directly? 5. ध्यान दे दीजिए, आंसर डायरेक्टली 7 नहीं है. You can see that there are 7 arbitrary constants, sir. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ऐसा 7 arbitrary constants दिख रहे हैं. But all these are not independent arbitrary constants. इसका मतलब है, देखिए यहाँ C1 एक arbitrary constant है, C2 एक arbitrary constant. So C1 plus C2 एक और arbitrary constant हो जाएगा ना, yes or no? Sometimes I can club the arbitrary constants, right? Yes, sir. So C1 and C2 are not independent arbitrary constant. इसको मैं simply C1 करके e power C3x कर लेता हूँ, and C4 plus C5x और C4 plus C5 by 3 वो दोनों को भी एक सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट एज्यूम कर सकता हूँ, ऐसा ना? Yes. So इसको मैं C2 लिखता हूँ e power
C6x plus C7, yes or no? Clear? So effectively देखा तो कितना arbitrary constants है? There are 1, 2, 3, 4, 5 arbitrary constants, yes or no? Clear है कि नहीं? Yes, sir. So order जो है वो 7 नहीं Yes, होगा, sir. कितना होगा? What is the order of this differential equation? 5. 5. Again, आप again it depends on your skill. ठीक है, आप हो सकते हैं C1 C2 को आप C1 लिख लिया, ये इसको तो आप ये लिख लिया. But is this all that I can do, or can I do something more than this? For example, my 4C2 into e power C6x into e power C7, ऐसा no? A power m into a power n. Yes, sir. अब e power C7 एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ऐसा no? C2 एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? Constant. ठीक है, C2 एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, e power C7 एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ऐसा no? So can I club these two also? कर सकता हूँ क्या नहीं? ऐसा no? So effectively देखा तो I can still reduce it to 4 arbitrary constants, yes or no? So the answer to this differential equation, the order of this differential equation will be 4, not 5. Clear है? Okay or Yes, not? sir. So जितना तक कर सकते हो उतना आपको करना पड़ेगा. Again, that's a skill that is to be developed. मतलब no one says, मतलब आप ये नहीं बोल सकते मैं observe नहीं किया इसको. मतलब you are expected to observe all this. Okay? Clear है ये? Yes, sir. So in the formation of differential equation, one of the things that you need to remember is number of arbitrary constants is equal to number of the order of differential equation. Clear है? So हम already देखे हैं y equal to mx plus c से d square y by dx square तक जाने को हम बोलते हैं formation of differential equation, है सर? Yes, sir. d square y by dx square से y equal to mx plus c तक जाने को हम बोलते हैं solving differential equation. समझ रहे? Clear? You may be asked both the questions. एक family of curves मिलेगा आपको. You may be asked to create the differential equation. That is one question. दूसरा है एक differential equation देके आपको इसका solution निकालने का भी बोल सकते हैं. Clear है? Okay? समझ में आ रहा है कि नहीं? Next Yes, page में sir. जाओ. Next page में जाओ. Yes, sir. So solution of differential equation, इस टॉपिक में आपको क्या क्या पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल देखिए, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन. ये डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इक्वल टू 0 इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन है सर. Yes, sir. बहुत बार क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस जो है मतलब एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में आएगा. फॉर एग्जाम्पल डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का सॉल्यूशन आपको पता है कि y इक्वल टू mx प्लस सी है सर. बट ये y इक्वल टू mx प्लस सी आने से पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन के एक और सॉल्यूशन आएगा. फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है सर. Yes. क्लियर? सो इफ यू लुक एट दिस, ये dx को आप राइट साइड भेज दे तो d ऑफ dy by dx is equal to 0. सो इंटीग्रेशन मतलब 0 dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो dy by dx is equal to some constant
मतलब 0 dx का इंटीग्रेशन 0 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट होता है ना, ऐसा हाँ सर। इज इक्वल टू सम k लिखता हूं, ऐसा ना, k1 लिख सकते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट्स का नोटेशन जो है आप अपने से कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद dy by dx is equal to k1, so dy is equal to dx into k1, again इंटीग्रेट कर लीजिए, so y is equal to k1x plus k2, क्लियर? ऐसा मतलब mx plus c और k1x plus k2 दोनों सेम है। कैन यू सी दिस? m and c are just notations for arbitrary constants. Okay, यस सर। Yes, sir. अब देखिए, what is the meaning of this solution? y is equal to k1x plus k2, इसका मतलब है k1 और k2 के प्लेस में कोई भी नंबर पुट कर लीजिए, दिस विल ऑलवेज सैटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। वही है ना मीनिंग? सॉरी, यस सर। सो देयर आर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। k1 आप अपने तरीके से कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, k2 के प्लेस में भी कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। सर अब देखिए, कैन आई से दैट y इज इक्वल टू k1x प्लस 3 इज ऑल्सो ए सोल्यूशन फॉर दिस? ये भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है क्या नहीं? हाँ सर। And y is equal to 3x plus 4, is it also a solution for this? What is the difference between these three solutions? This solution is called the general solution. The solution which encompasses all the possible solutions is called the general solution. समझ में आ रहे? अगर arbitrary constants के place में कुछ particular values आप put करते हैं, such solutions are called particular solutions. समझ में आ रहे? जनरल सॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सारा सॉल्यूशंस है, सारा आंसर्स है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है वो सारा जनरल सॉल्यूशन में आप कुछ पर्टिकुलर केस आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है? ओके और नॉट? यस। सो अगर इफ यू आस्क what the basic definition of general solution is, मैं definition बोलता हूं, general solution is a solution where you have as many arbitrary constants as order of the differential equation. general solution का मतलब क्या है? as many arbitrary constants as the order of differential equation. समझ में आ रहे? अगर एक सॉल्यूशन में जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतना अगर आर्बिट्री कांस्टेंट्स है तो दैट इज कॉल्ड ए जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अगर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इज लेस देन ऑर्डर है तो समझ में आ रहे? देन इट इज कॉल्ड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है? देखिए, ये भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। देयर कैन बी मेनी पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, ऐसा ना? बिकॉज़ फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है ना, उसमें कोई भी सब फैमिली लेते हैं। ये दिस इज द फैमिली ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइंस, ऐसा ना? व्हाट इज दिस? दिस इज द फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस whose y intercept is 3, ऐसा ना? एक पर्टिकुलर कंडीशन में अप्लाई किया हो ना लाइंस पे, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एंड ये क्या है? जिसका y इंटरसेप्ट 4 है और स्लोप 3 है, दैट इज आल्सो ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है? यस। So sometimes you might be asked to find particular solutions. For example, d square over dx square equal to 0, that's a differential equation. So आपसे पूछेगा, find the particular solution of this differential equation which passes through 2, 3 and have slope is equal to 5.
तब क्या होगा, इसका एक जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। इस जनरल सॉल्यूशन में ये दोनों कंडीशंस, जो भी कंडीशंस मिलते हैं वो कंडीशंस अप्लाई करेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आएगा, एंड दैट बिकम्स अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर? सो जनरल सॉल्यूशन में कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस अप्लाई करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. आगे जा सकता हूं? नोट किया? नोट कर लीजिए। अगर नोट किया तो बोलिए। हो गया सर। और आपका बेटा दूसरा शांतनु? Yes, sir. Okay. ये देखिए, so first class of problems that you need to understand is verifying the solution of a differential equation. देखिए, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, verify whether this particular equation is a solution of this differential equation. आप देख सकते हैं ये differential equation का डिग्री क्या है? What is the order? Sorry, what is the order of differential equation? 2. Yes or no? So if you solve this differential equation, आपको कितना arbitrary constants आना चाहिए? 2 arbitrary constants आना चाहिए solution में। So आपको एक solution दिया गया है जिसमें 2 arbitrary constants हैं। Okay, so you have to check whether this is a solution to this differential equation. Okay, so checking कैसे करना है? Simply you just have to substitute this y in this equation and check whether this equation is satisfying this differential equation or not. Okay, so y आपको दिया है, so dy by dx क्या है? माइनस a sin x माइनस b cos x, डिफरेंशिएट करना तो आता है। एंड व्हाट इज d स्क्वायर y by dx स्क्वायर? माइनस a cos x प्लस b sin x, ऐसा ना? Yes, sir. सो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 चेक करते हैं। सो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस a cos x प्लस b sin x प्लस y इज a cos x माइनस b sin x, 0 आ रहा है क्या? नहीं हाँ सर। आ रहा है ना? दैट मीन्स this particular solution is a, this particular answer family of curves is a solution to this differential equation. Is it a general solution or a particular solution? ये जनरल सॉल्यूशन है, समझ में आ रहा है? क्योंकि डिग्री ऑर्डर 2 है और 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। ओके, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स minus m square y is equal to 0, e power m sin inverse x is equal to y. Check whether this is a solution to this differential equation or not. Okay, so आपके पास ऑप्शंस भी है। देखिए, इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स सब कुछ कैलकुलेट करके यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है? इसको सिंप्लीफाई करके भी, मतलब ऐसा जरूरत नहीं कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल के ही पुट करना है, कोई भी स्टेज में आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल e पावर m sin इनवर्स x इज इक्वल टू y, एक बार डिफरेंशिएट किया तो e पावर m sin इनवर्स x इनटू m बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू dy by dx, ऐसा ना? यस सर। अब e पावर m sin इनवर्स x को y बोल सकता हूं? हाँ सर।
So my is equal to dy by dx into root of 1 minus x square. Yes or no? Yes. अब यहां देख रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर है आपके पास. सो आपको लग रहा है इसको स्क्वायरिंग करके थोड़ा सा काम चलाएंगे, स्क्वायरिंग करेंगे. So m square y square is equal to d square y by dx, sorry, dy by dx का whole square into 1 minus x square. ऐसा ना? Yes, sir. dy by dx का whole square into 1 minus x square. So अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे. m square into 2y dy by dx is equal to 1 minus x square into dy by dx whole square का 2 dy by dx into d square y by dx square. ऐसा ना? प्लस dy by dx का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x. सही है कि नहीं? यस सर. सो यहां से आप देख सकते हैं dy by dx, एक dy by dx, एक dy by dx कैंसिल हो गया. सो 2m square y is equal to 2 into 1 minus x square into d square y by dx square minus 2x dy by dx. ऐसा ना? 2 2 2 कैंसिल हो गया. सो जो गिवन इक्वेशन है वही आया या नहीं? Yes, sir. एग्जैक्टली वही आया. 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0. है सर नो? Hence this is a solution to the differential equation. Okay, clear? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. Yes sir. So again, is it a particular solution or a general solution? No, sir. Is it a particular solution or a general solution? General. देखिए, आप जैसा डेफिनेशन बोला गया है उस डेफिनेशन के हिसाब से चेक कर लीजिए. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? 2. ऐसा ना? एंड मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना आर्बिट्री कांस्टेंट्स है? बोलिए, मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन में, सॉरी, मेरा सॉल्यूशन में कितना आर्बिट्री कांस्टेंट्स है? One. कितना? 1. 1. कौन सा है? हाँ, m. गलत है, क्योंकि m आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है. क्योंकि अगर m आर्बिट्री कांस्टेंट है वो m डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होना चाहिए ना. ऐसा ना? डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स होगा? नहीं होगा ना. ऐसा ना? सो m इज नॉट एन आर्बिट्री कांस्टेंट. इसका मतलब है इस इक्वेशन में एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है. ऐसा ना? Yes, sir. सो इसका मतलब क्या है? दिस इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन. समझ में आ रहा है? क्लियर? सो एवरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन आल्सो सैटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ऐसा नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं करेगा. क्लियर है? Yes sir. देखिए, ये मत सोचे कि मतलब इसको यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिराइव कर लिया ना हमने. ऐसा ना? डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिराइव कर लिया. तो आपको डाउट आ रहा होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन यूज करके कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव कर लिया हमने. ऐसा ना? क्योंकि हाँ, एक्चुअली हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया ना. ऐसा ना? Yes, sir. सो आप ये कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन देख लीजिए. मान लीजिए y इक्वल टू 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3. इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा?
जो जनरल लाइंस का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वही आ जाएगा ना, है सर ना? हाँ हाँ सर। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन से भी आप you can go back to the differential equation by differentiating sufficient number of times. Okay, Yes. समझ में आ रहे? बट y इक्वल टू 2x प्लस 3 का डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है. दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल लाइंस, ऐसा नो? This is the differential equation of all the possible lines, yes or no? It's not just the differential equation of y equal to 2x plus 3. But y equal to x plus 3 से भी आप d square y by dx square equal to 0 derive कर सकते हैं. Clear है? Yes. So आपको ये समझ में आ रहा है अभी? एक solution दिया तो how to verify whether it is a solution to the differential equation or not. Yes, sir. Yes sir. तो अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका उल्टा देखेंगे. इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. So now you are given the differential equation solution and the differential equation. Just check करने के लिए बोल रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में हम वो मेथड देखेंगे जिस मेथड से आप यहां से यहां तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं. If you have a family of curves in Cartesian form, how to get to the differential equation? That is the next topic. And बाकी चैप्टर जो है that is about going back. डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, सो चैप्टर का Yes, sir. देखिए इफेक्टिव द टॉपिक्स आर वेरी लिमिटेड. एक फैमिली ऑफ कर्व्स दिया तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, दैट्स वन थिंग. एंड एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपके पास उसका करस्पॉन्डिंग फैमिली ऑफ कर्व्स कैसे निकालना है. दीस आर द बेसिक थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. क्लियर? And obviously solving a differential equation is the main topic of this chapter. क्योंकि बहुत सारे रियल लाइफ सिचुएशन में आप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्रिएशन जो है वो आप कंपैरेटिवली इजीली आप कर सकते हैं. सो आप वंस यू गो टू इंजीनियरिंग, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डिजाइन द बिल्डिंग, मान लीजिए कंक्रीट को डिजाइन करना है, कंक्रीट स्टील वो सारा डिजाइन करना है, ये पूरा मटेरियल का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है. समझ में आ रहे? वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते रहा तो अलग अलग सिचुएशंस में आपको अलग अलग सॉल्यूशंस आते रहेगा. सो सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. सो दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. उससे पहले जो भी है दैट आर एक्स्ट्रा थिंग्स दैट वी आर लर्निंग. क्लियर है? ऑब्वियसली पहला सॉल्यूशन तो नहीं आएगा ना आपको. पहला आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, इसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ता है रियल लाइफ सिचुएशंस में. ओके, Yes, sir. Yes sir. सो आपका कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं. हाँ सर. सर सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है कर्व का. क्या है बेटा, आप सेंड करिएगा क्या? आप सेंड कर. यहाँ भी शेयर कर सकते हैं या व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं, आपका चॉइस है. चाहे तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं एज यू विश. सेंड कर दिया. Find the equation of the normal to the curve y is equal to, find the equation of normal to the curve y is equal to
1 plus x power y plus sine inverse of sine square x at x is equal to 0. इसमें दिक्कत क्या है बेटा, मतलब क्या कुछ स्पेसिफिक दिक्कत हुआ या? बहुत लंबा होगा, हाँ क्या है? बहुत ज्यादा ही लंबा होगा, बहुत लेंदी हो जा रहा है। क्या मतलब, क्यों लेंदी हुआ, मतलब क्या किया आपने? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या किया आपने? मतलब डिफरेंशिएशन लंबा हो रहा है क्या आपको? हाँ सर, क्या लंबा हो रहा है? नहीं बहुत लंबा नहीं है। फर्स्ट x इक्वल टू 0 है तो y कितना है? x इक्वल टू 0 है तो y कितना आया? ये तो आया होगा। कितना आया? पहले कोई भी पॉइंट पे अगर कोई भी कर्व का नॉर्मल निकालना है तो पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा ना। सो x 0 है तो y कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कैन यू सी दिस? ये तो इजी है ना। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1 आ रहा है, ये इजी है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करने में आपको थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा चलेगा। बट आप देखिए, डोंट ट्राई टू डिफरेंशिएट इट वन ऑल एट ए टाइम। इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, वैसे करते हैं ना लॉग यूज करके। हाँ सो लेट u इज इक्वल टू 1 plus x होल पावर y, ln u इज इक्वल टू y ln 1 plus x, ऐसा ना। So 1 by u du by dx is equal to y by 1 plus x, ऐसा ना, plus 1 plus x into dy by dx, right? Clear है? ln 1 plus x, क्या है बेटा? So du by dx is equal to u का मतलब 1 plus x whole power y into y by 1 plus x plus 1 plus x into dy by dx. Clear है ये? Okay? यस सर, सो आपको लगभग हो गया। सो यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन इज ये वाला 1 प्लस एक्स इंटू वाई बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा ना, प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस साइन पावर 4x, ऐसा ना, इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हो गया? क्लियर? यस सर, देखिए ये तो थोड़ा सा लंबा चला, बट आप थोड़ा सा देखा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूरा तो नहीं करने का जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू राइट एवरीथिंग, क्योंकि एज सून एज यू आर डूइंग दिस आप हर स्टेज में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं। समझ में आ रहे? आपको dy बाई डी एक्स निकालना है ना। सो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 पुट किया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 है तो ये 1 है, ऐसा ना, 1 बाई 1 ये 1 प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये पूरा 0 हो गया। देखिए क्योंकि साइन एक्स तो x 0 है ना, तो साइन एक्स तो 0 हो गया ना, हाँ से पूरा 0 हो गया, ऐसा ना। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो रहे हैं। यहाँ दिक्कत हो रहा है मेरा, मेरा कैलकुलेशन सही है सारा? भाई ln 1 plus x होगा ना शायद, ln 1 plus x into dy by dx। नहीं नहीं, 1 प्लस एक्स तो x 0 है तो 1 प्लस एक्स 1 ही हो गया ना। सर ln u is equal to y ये ln 0 1 है क्या? plus x। नहीं नहीं, y 1 है। मेरा कुछ मिस्टेक है क्या? हाँ सर ln 1 plus x dy by dx होगा 1 प्लस एक्स पावर y है ना यहाँ। क्या हुआ? डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ऐसा क्यों आ रहा है? ठीक है, मतलब इसका मतलब है अगर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट डिफाइंड, ऐसा ना। अगर कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है तो आएगा ना। अगर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है?
इन्फिनिटी होना चाहिए ऐसा ना। अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो dy by dx इन्फिनिटी है, इसका मतलब tangent का स्लोप इन्फिनिटी, tangent इज वर्टिकल सो नॉर्मल इज हॉरिजॉन्टल, ऐसा ना। हाँ, सो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। समझ में आया नहीं? समझ में आया। एक्चुअली वही लंबा होता है डिफरेंशिएशन में। सही है आंसर? नहीं, गलत है क्या? क्या आंसर क्या है? सर y plus x minus 1 is equal to 0. y प्लस एक्स minus 1 is equal to 0. माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है क्या? इसका मतलब ये यहाँ कुछ गलती हुआ, हमको कुछ एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा आया कहीं से। देखिए x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 1 तो सही है, 0,1 में कुछ गलती नहीं है। तो वो u का डिफरेंशिएशन हमने गलत किया। क्या है? सो u ln u is equal to y ln 1 plus x लिखे ना जो। सो उसके नीचे वाले स्टेप में देखो। 1 प्लस, ओके ln 1 प्लस x है ना यहाँ, हाँ, सॉरी। बस वही। सो ये 0 हो गया ना ln 1 प्लस x, ये नहीं आएगा। सो dy by dx इक्वल टू 1 आ रहा है। सो नॉर्मल का स्लोप जो है -1 है सर। सो हो गया ना, 0,1 से जाना है, सो y इज इक्वल टू -x प्लस 1। क्लियर है? सो यहाँ आपको ये आइडिया होना चाहिए, मतलब देखिए इस प्रोसेस, देखिए जैसा ये कर रहा हूं ना मैं, अगर आपको टाइम सेव करना है तो जैसा आप कर रहे हैं वैसा वैल्यूज भी लिखते जा सकते हैं, यू डोंट नीड टू राइट एवरीथिंग। अगर मैं एग्जाम में कर रहा हूं, व्हाट आई विल डू इज यहां तक लिखूंगा सर ना, 1 by u, u का मतलब 1 प्लस एक्स होल पावर y है ना सर। हाँ सर। इसका मतलब x इक्वल टू 0 है तो 1 पावर y 1 ही है ना, 1 by 1 du by dx is equal to y by 1 plus x, y is 1, 1 plus x is 1, 1 by 1, so 1 plus ln 1 plus 0, ln 0 तो ln 1 तो 0 है, से पूरा 0 हो गया सर ना। So basically dy by dx is equal to 1, du by dx is equal to 1 है, so dy by dx is equal to 1 plus इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया ना, so dy by dx 1 डायरेक्टली आ गया। क्लियर है? और कुछ डाउट्स? ट्यूसडे को कैची का टेस्ट है? हाँ, सर ट्यूसडे को ट्यूसडे का टेस्ट। एरियाज का होगा बेटा। सर डेफिनेट कॉलिजन है। क्या है? सर डेफिनेट कॉलिजन है। डेफिनेट, सर डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ओके, दोनों मिला के आएगा क्या? एरियाज हुआ नहीं क्या? अभी सर उतना अच्छे से नहीं है, खाली आरएससी की है। ठीक है, मतलब बेसिक क्वेश्चन से आएगा बेटा आपको, नहीं बेसिक सर, कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेफिनेट में दे दीजिए, अच्छा जेई कर लेना सर। ठीक थैंक यू सर। ठीक ठीक, Thank you, sir. हाँ ओके बेटा। तो थैंक यू सर। गुड नाइट बेटा सबको। Good night.